Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 11th chemistry, and the chapter we were doing was classification of elements and periodicity in properties. So guys, this gonna be your today's topic, right? So important topic hai, don't forget to watch this video with the notebook and a pen with you. Start writing all the important things which you think that this topic is really very important. Got it? So don't forget to write down all the important topics. मैं आपको इसीलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ दैट आर रियली हेल्पफुल. वी डू ओनली दोज टॉपिक्स. वरना के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स रहते हैं मैं ऐसे जस्ट एज अ वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ. Right? So always keep everything in mind which I teach you and I give you a solid focus on the any particular topic. Just practice those topic very clearly. Got it? So today's topic is about F and D block elements. So हमने starting में P और S block elements के बारे में बात की थी, and today's topic is going to be about these two blocks. Right? सो पहले हम लोग बी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे फिर एफ ब्लॉक. गॉट इट? सो योर फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स. राइट? सो योर दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर also called as transition elements. What they are called as? Transition element. So transition elements, अगर आपसे कोई पूछता है give one example of transition elements, so what you are going to do is you are going to write any name that element that is belonging to your D block element, right? So that will be your transition element. सबसे पहली important चीज़ तो यही थी, right? So this is your most important thing in today's topic जो आपको याद रखनी है, right? I am marking a star here. If you find such type of star anywhere in the whole video, just write down that thing is going to be really very important for you, right? So अब हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. हम कैसे एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट? सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा. कोई भी एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, किसी भी इनर डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, सो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड योर डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट. सो व्हाट विल यू राइट? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into any of inner d orbital. राइट? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी इनर डी शेल ऑर्बिटल में जाता है, सो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज योर ट्रांजिशन एलिमेंट. इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा. जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं दैट if an element has atomic number this and last electron your enters into d shell, right? So what block does that element belong to? So आपको याद रखना है कि किसी भी इनर डी शेल में अगर आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का, सो दैट एलिमेंट विल बी फ्रॉम योर डी ब्लॉक, राइट? सो ये तो क्लियर हो गया हमें. नाउ अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में बिलोंग कर सकते हैं. मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में डाल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट. मैक्सिमम योर इलेक्ट्रॉन नंबर शुड बी 10, राइट? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप डी ऑर्बिटल्स में डाल सकते हो, राइट? अब हम देखते हैं कौन से ग्रुप्स होते हैं जो हमारे इस ब्लॉक यानी डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं. गॉट? सो ग्रुप नंबर 3 योर 12 बिलोंग्स टू ब्लॉक डी. वेट, आई विल एक्सप्लेन यू.
So see, these are your groups which belongs to your D block, right? So any of element that is from your group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Any of element belonging to these group will belong to which block? Your D block. Right? So this is an important point. I have already kept the star over the topic. Just write down in your rough notebooks. Right? So this is important. Now nextly we will talk about some few characteristics which are important for this group, to identify this group generally, right? So now as I told you we are going to talk about characteristics, right? So अब हम एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट हैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी तक हमने दोनों ब्लॉक्स में डिस्कस किए. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट? सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ n-1, right? After the bracket your D comes 1 to 10, next comes ns and it comes to 0 to 2, and as I told you your n will be is equal to 1 2 3 up to 10. Got it? So this is all about the electronic configuration. बहुत easy था, आई गेस कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अबाउट योर टाइप्स. किस टाइप की मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं? सो दे आर जनरली मेटल्स, राइट? जनरली मेटल्स होते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो डेल्ट विद कि मेटल्स हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा, राइट? सो आई विल राइट इन शॉर्ट because it takes a lot of time to write full form. So melting point and your boiling point is right? So your melting and boiling point is high. Boiling point is high, right? This symbol denotes your high. सो ये तो 3 बेसिक कैरेक्टर्स हैं, आपको पता चल गया. अगर कोई भी, जस्ट माइंड दिस इन योर ओन, कि कोई भी ग्रुप या पीरियड या फिर आपका ब्लॉक में मेटल्स हैं, सो दे विल हैव योर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इट्स कॉमन जिकल क्वेश्चन, राइट? वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी एडेड इन योर दिस प्रॉपर्टी, राइट? जस्ट माइंड इट वेरी क्लियरली, right? So this is your fourth point, that is they form your colored ions. What is colored ion? Anybody know? Means कि इनके जो भी ions होते हैं वो कलर फॉर्म में होते हैं. मेटल्स अगर हमारे मेटल हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर मेटल्स break into ion, so that will be variable colors, right? So that property. So ये होता कैसे है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं. दैट्स वाई दे आर योर कलर्ड आयंस. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज बीन एडेड, सो राइट डाउन दिस, राइट? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट योर वेरिएबल वैलेंसी, राइट? योर फिफ्थ पॉइंट इज, so your fifth point means they show your variable valencies, right? And due to these variable valencies, what are they have a large number of valency terms. Got it? होता क्यों है ऐसा? बिकॉज जो इनका 3 और 4s ऑर्बिटल होता है वो बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? एनर्जी प्रेजेंट होती है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी दैट शोज योर bonding, that makes your bonding. So this is the important fifth point, right? Fourth and fifth point is really very important, so write down those points in your notebooks. These are the important points that need to be remembered after each of the time. So your point number 6, right? Your point number 6 is also important. It talks about some characteristic, right? सो जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं. व्हाट दे शो? पैरामैग्नेटिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा.
कभी कभी पूछा जाता है ये कि विच ग्रुप और विच ब्लॉक एक्चुअली शोज योर पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। सो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? दिस रीज़न इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज इनके जो डी ब्लॉक है what it has your unpaired electron, right? So unpaired electron होने की वजह से क्या होता है, आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो शो करेंगे क्या? पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज योर रीज़न? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, राइट, ये पॉइंट याद रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d orbital, what? your d orbital। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट के d ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, सो वो एलिमेंट क्या शो करेगा? आपकी पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। और एक चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाई इलेक्ट्रॉन, देन पैरामैग्नेटिज्म विल बी ऑल्सो योर हाई। यानी कि आपके जब इलेक्ट्रॉन्स हाई रहेंगे, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सो आपका पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी उतनी ही हाई रहेगी। गॉट इट? सो ये था पॉइंट नंबर 6। नाउ ये पॉइंट नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है, सो कीप दैट पॉइंट ऑल्सो इन माइंड, वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये इनको जनरली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है कि अगर आप उसको किसी सॉल्यूशन में या रिएक्शन में डाल देते हो, सो वो उस रिएक्शन की अकर होने की परसेंटेज को बढ़ा देता है, राइट। सो फॉर दैट योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इसलिए यूज़ होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन रिएक्शंस, राइट। और एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज़ होते हैं? रीज़न इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज, राइट, वाई? बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी प्रॉपर्टी, राइट, वेरिएबल वैलेंसी, and along with that partially filled d electron, d orbital, right। this is also important कि partially filled क्या होता है? आपका d orbital होता है। keep this in mind, बहुत important है d orbital, right। so ये दोनों आपके reasons हैं जिस वजह से आपका क्या होता है, they are given your as catalyst। so अगर आपसे कोई पूछता है कि why your d block elements are considered as a good catalyst, so you have to give these 2 examples and reasons for that। what are those reasons? first one is your variable valency property, and second one is your reason for half filled electrons in d orbitals, right। so ये तो थे 7 properties आपकी किसकी? D block elements की। now we will be talking about F block elements, right। F block elements में आपके क्या क्या आते हैं? lanthanoids and octanoids। so let's see those two। so your next topic is, as I told you, F block elements, right। so this F block elements are also called as your inner transition element, right। so keep this point in mind because it is one of the important topic. I am putting a star, so write down this point। why these are called your F block? as we are regularly studying about this कि जो भी आपके elements हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बेसिस पे हम उन्हें नाम असाइन करते हैं। वी हैव स्टडीड, राइट। सो सेम थिंग इज़ विद योर दिस फैक्टर ऑल्सो, मीन्स कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाना चाहिए? एफ शेल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द एफ शेल, राइट। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन योर
F shell. This thing is very important. You should know कि आपका last electron कहाँ जा रहा है, right? So your last electron goes in your F shell. Got it? Basically your two series are there, right? Two series है आपकी इसमें, and they are generally termed here as lactanoids and anthanoids. What are they termed as? So as I was telling you कि दो series होते हैं. The first what I told you was lanthanoid, and second what I told you was your actinoids. And you must be remembering that I showed you the overview video. In overview video I have drawn a table for you. That was your modern periodic table, right? वहाँ पर नीचे मैंने एक ऐसा रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बनाया था टेबल के जस्ट नीचे, and there in middle I drawn a line and I told you that two particular series are there. Above one was your lanthanoid and down one was your actinoids. So this series is what your F block. इसी को हम क्या कहते हैं, your F block. This is important कि आपको पता होना चाहिए कौन सी सीरीज कहाँ पर लोकेटेड होती है, ठीक है. सो दिस डाउन सीरीज जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था दैट वाज योर व्हाट, योर एफ ब्लॉक. रिमेंबर, इसको हमेशा याद रखिएगा एंड इम्पॉर्टेंट भी है ये. गॉट इट? सो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक इज देयर. दोनों का हमें पढ़ना है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट योर लैंथेनोइड्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर actinoids, right? So characteristic we will be talking about this. So your first characteristic as we were discussing continuously कि हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट. सो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसका डिस्कस करने वाले हैं, लैंथेनोइड का. सो लैंथेनोइड को थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वहीं आप क्या कर सकते हो, एक्टिनोइड का ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है. सो लैंथेनोइड का आपका है 4F, राइट. 4F 1 to 14, 5D0 to 1, 6S2, right? This is for your lanthanoids. And for your, here I am writing जिससे कि आपको कोई confusion ना हो. बहुत important चीज़ है ये, and there should not be any confusion, right? Lanthanoids. Second is your actinoids, right? So actinoid का क्या है आपका 5F 1 to 14, 6D0 to 1, 7S2, right? This is for your what? Actinoids, remember. These both the things are important. And remember one thing, यहाँ पे हमने 4 और 5 इसलिए particularly यूज़ किया है because this is your what, 5F series, right? 5F series है ये, और ये क्या थी, 4F series थी. So this reason है जिसकी वजह से हमने particularly इन दोनों के आगे के नंबर में चेंज शो किया है, right? Now next characteristic is also important. We will talk about that also. Here's second property. Sorry. Here's second property, right? This is also important. ये क्या कह रही है कि दोनों ही series means your lanthanoids and actinoids के सारे elements क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. सो देयर इज शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक नेचर क्या होता है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू टेल इज कि ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, राइट. नाउ योर थर्ड पॉइंट इज योर थर्ड पॉइंट, राइट. सो थर्ड पॉइंट योर डील्स विथ योर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका, राइट, योर ऑक्सीडेशन स्टेट for your F block is +3. मीन्स जितने भी एलिमेंट्स आपके
किस में है, एफ ब्लॉक में है, वो जनरली क्या शो करते हैं, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट राइट डाउन दीज बोथ पॉइंट्स. दीज आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, राइट. सो दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. और आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉमन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का, दैट इज़ योर +3. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपसे जनरली पूछा जाएगा. सो यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू आर आस्क्ड टू आंसर द वन. यू विल ऑब्जर्व कि जितने भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, योर 4 ऑप्शंस आर गिवन इन योर क्वेश्चन, दे आर व्हाट, दे आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. ऐसे पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, ऐसे 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे जो आपके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी निकालोगे एफ ब्लॉक का, सो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वो सारे पॉइंट्स आएंगे. सो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बट आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ओनली +3 इज़ योर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स. गॉट इट. दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज. And your fourth point is going to be also very important for you. So just try to understand these things because these are important, right. So what your fourth point says to you, fourth point आपके रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिव नेचर के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं. What does it discuss? ये कहता है कि आपका जो फोर्थ पॉइंट, राइट. सो योर फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं, राइट, एक्टिनोइड्स जो हैं आपके, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं. क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर, राइट. सो इट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. यानी कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एक्टिनोइड्स का आपका नेचर क्या होगा, सो यू हैव टू सिंपली से रेडियो एक्टिव, राइट. What are they? They are radioactive in nature. No problem. Whatever is your question, 1 marks, 2 marks, 3 marks, whatever is the number of question, your answer is not going to change from radioactive. Got it? And your last point आपका जो है वो है आपका लैंथेनोइड्स के लिए. Your lantanoids are called as rare earth metals. What are they called as? They are called as rare earth metal because they rarely occur in your earth's crust, right. Rare earth metals, or you can say elements also, right. Why do we say like this? बिकॉज ये जो हैं आपके लैंथेनोइड से बहुत कम यानी कि रेयरली कहाँ पे फाइंड होते हैं, अर्थ क्रस्ट में. सो दैट्स वाई व्हाट दे आर कॉल्ड एज योर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, राइट. सो नाउ दीज वर योर कैरेक्टरिस्टिक फॉर व्हाट, एफ ब्लॉक. सो मैंने चारों ब्लॉक का डिस्कस किया आपसे, एस एंड पी एंड देन योर एफ. So that's all guys. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Soon we'll meet in the next video. Bye bye.